गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट 33 एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है आपके पास, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। अब आप 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली मतलब कंटिन्यूसली 200 टाइम्स। 3 कॉइन को आप 1 कॉइन को 3 टाइम थ्रो करें या 3 कॉइन को 1 टाइम, तो दोनों के जो आउटकम है वो सेम होंगे। लेकिन यहाँ क्या है, 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम विद फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। आउटकम्स हेड यानी 200 टाइम थ्रो करने के बाद आपका जो हेड आ रहा है वो है 23 टाइम्स, जो 1 हेड आया तीनों कॉइन्स पे। अगर आप 2 हेड यानी 2 कॉइन पे हेड आए, दैट इज 72 टाइम्स। 3 हेड्स यानी तीनों ही कॉइन पे हेड आ जाए, वो है 77 टाइम्स। और नो हेड दैट इज 28। नो हेड मीन तीनों ही कॉइन्स पे 200 टाइम थ्रो करने पे भी आपका हेड नहीं आया, मीन्स टेल्स दैट इज 28। अब यहां से आप इन सभी का सम करते हो, 3, 5 और 7, 12 और 8 दैट इज 20, 0, 2, 7, 9, 16, 17, 18 और 200। तो टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 200। नाउ यू हैव टू फाइंड इफ 3 कॉइन आर simultaneously tossed again, compute the probability of getting 2 heads. Now favorable outcome that is 2 head, और total outcomes यानी total number of trials that is 200. तो probability of getting 2 heads, probability of getting 2 heads, that is favorable outcomes या number of trial in which event happen। जो 2 हेड का इवेंट है दैट इज 72 टाइम, तो 72 बाई टोटल आउटकम यानी टोटल ट्रायल दैट इज 200। 72 बाई 200 आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 100 और दिस वन इज 36। 36 बाई 100 25 और ये 4 से कैंसिल करोगे 9, 9 बाई 25। यस स्टूडेंट, अगर आपको यह निकालना होता 3 हेड्स, तो फिर क्या लिखते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड दैट इज trial in which event happen mean favorable outcome that is 77 by 200। 77 by 200। और आपके पास होता नो हेड, then probability of getting no head that is 28 by 200। 28 by 200 और यहां से 4 से कैंसिल करो तो 4 7 है 28, 4 5 है 20 और 0 दैट इज 7 by 50। दैट इज योर आंसर। तो ऐसे ही 1 हेड की भी निकाल सकते हो आप। तो दैट इज योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Student question second, the percentage of marks obtained by a student in monthly unit test are given below. Unit test 1 percentage of marks 69, unit test 2 marks 71%, unit test third marks 75%, fourth unit test में 68% और 5 के अंदर 74%। Now based on this data find the probability that the student get more than 70
5% मार्क्स। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी लिखिए पीई, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। Total outcomes. Now in this question unit test, पहले total outcomes देखिए आप, total unit test, total unit test, total unit test है आपके पास 5, 1 2 3 4 5. Now you have to find out the student get more than 70% marks. Now there are only 3 tests, 1 2 or 3 unit test. Student got more than 70% marks in unit test 2, 3 and 5. Unit test 2, 3 and 5. तो आपके पास मोर देन 70% है, तो स्टूडेंट गॉट मोर देन 70% मार्क्स इन यूनिट टेस्ट 2, 3 एंड 5, 2, 3 और 5. तो फेवरेबल आउटकम हो गया आपके पास, दैट इज 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट get more than 70% marks, that is 3 by 5. 3 by 5. Based on the data, find the probability that student get more than 70% marks in unit test. So total outcome, that are 5 unit tests. You have to find student get more than 70% marks. 70% marks, that is 71, 73 or 74. Only 3 unit tests. So student got more than 75% marks in unit test 2, 3 and 5. So P student get more than 70% marks. Any probability of student getting more than 75% marks, that is 3 unit tests by total unit tests, that is 5. So 3 by 5 is your answer. Yes. One more extra question. P. Student get less than 70%. Less than 70% marks. Yes, स्टूडेंट क्या होना चाहिए? लेस देन 70% मार्क्स. लेस देन 70%. तो लेस देन 70% मिले रहे हो तो यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 4, these 2 unit tests having marks less than 70%. So you will write 2 by 5. That is your answer. और क्वेश्चन में आपके पास ये होता, स्टूडेंट गेट एग्जैक्टली 73% मार्क्स. 73% marks, that is only 1 in only unit test. Third, he get exactly 73
3% marks. That is 1/5 is your answer. I hope you will understand this question very well. Thank you, student. Yes, student. Today we will discuss worksheet 34 experimental probability. Consider the frequency distribution table given below, which gives the weight of 38 student of a class. टेबल गिवन है आपके पास, ये क्वेश्चन है टेबल से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले आप आइडेंटिटी देखिए. पीई नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. आपने पहले भी पिछली क्लास में भी आपने फार्मूला किया था, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था. आउटकम्स यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं आप, अगर कॉइन को थ्रो करते हो तो कॉइन के पास आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल. तो दीज आर द आउटकम्स. इन्हें क्या कहेंगे आप? आउटकम. अब अगर एक डाइस को थ्रो करते हो, आप डाई को थ्रो करते हो तो आपके पास टोटल आउटकम होंगे 6. 1 2 3 4 5 6 दैट आर कॉल्ड आउटकम्स. अब आप आ जाइए एक्सपेरिमेंटल. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? Experiment mean an operation which can produce some well-defined outcome. Well-defined outcomes. यानी well-defined outcome क्या है आपके पास? अगर कॉइन को आप थ्रो करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आपके लिए फिक्स है, वो well-defined है कि आपके पास हेड और टेल ही आना है. डाइस को थ्रो करोगे, दैट इज ऑल्सो well-defined. फिर है ट्रायल. Trial is an action which result in one or several outcomes. Trial क्या है? एक एक्शन है in which one or more or several outcome comes, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा जो है आउटकम आते हैं. आउटकम आप समझ गए. डाइस को थ्रो करते हो, जो उसके फेसेस आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आउटकम्स. अब आपके पास है इवेंट. इसमें आया है नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई. इवेंट क्या है बच्चे? जैसे आपके पास अगर डाइस को थ्रो करते हो, डाइस के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 नंबर आ जाते हैं. जो 1 2 3 4 5 6 है वो क्या आपके पास आउटकम है. क्या है? आउटकम्स. और उसमें से अगर आप ये कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर में आपके पास आ जाएगा 2 4 और 6. 2 4 6. तो ये 2 4 जो आपने क्या कहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर. तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, जो इवन नंबर होगा आपके पास, वो क्या होगा? इवेंट बन गया है. दैट इज द इवेंट. तो इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. A dice is thrown one time. तो अब यहां से अगर आप आउटकम लेते हो, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 और 6. 5 और 6. अब यहां से कहेंगे टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स तो आपके पास क्या आ गए? 6. अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर. ऑड नंबर्स आर, ऑड नंबर है आपके पास 1 3 और 5. तो जो ऑड नंबर्स हो गए वो आपका एक इवेंट हो गया आउटकम्स का, यानी आउटकम का एक पार्ट है, और उस पार्ट को क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं. इवेंट इज द पार्ट ऑफ आउटकम्स. आउटकम्स आर 1 2 3 4. अगर आप यहां प्रोबेबिलिटी लिखो P ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स,
तो फार्मूला क्या आपके पास, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम कितने हुए आपके पास, 3 और टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 1/2, 1/2। तो वर्कशीट से पहले जो बेसिक पॉइंट थे, व्हाट इज इवेंट, व्हाट इज ट्रायल, व्हाट इज टोटल आउटकम्स, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके ओके स्टूडेंट, अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन में आपके पास, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन बिलो विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो ये सम है आपके पास, दैट इज 38 टोटल। अब है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50, 46 से 50 में, यानी 46 और 50 के बीच में वेट कितना आपका, 3 स्टूडेंट का। तो आप क्या लिखेंगे, 3/38, 3/38, यानी फेवरेबल क्या हुआ आपके पास, स्टूडेंट लाई बिटवीन 46 और 50, दैट आर 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज 38, तो डिवाइड बाई 38, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट। सो यू विल राइट P, अब वेट वेट 46 to 50 kg, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ स्टूडेंट इन लाइज इन द इंटरवल। तो आप ये भी कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी वेट लाइज इन द इंटरवल ऑफ स्टूडेंट 46 to 50, that is 3/38। ये आपका फर्स्ट केस आ गया। सोल्यूशन में यू विल राइट, फर्स्ट फार्मूला लिखिए, उसके बाद सोल्यूशन। अब सेकंड केस में क्या करें आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेट ऑफ स्टूडेंट इज मोर देन 50 kg, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट more than 50 kg, yes, more than 50 kg, 2 plus 1 plus 4 that is equal to 7, 2 plus 1 plus 4 that is 7। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट having weight more than 50 kg। बच्चे यहां लिखा था नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा था, यहां क्या लिख रहे हैं, उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी, दैट इज, फिर फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आपके पास 7, टोटल आउटकम 38, दैट इज योर आंसर, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। अंडरस्टैंड? यस सर। बच्चे इसी में हम और क्वेश्चन बना लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाते हैं इसी के अंदर, ये नोट कर लिए? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, वेट ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट having weight more than
35 kg. More than 35 kg. Yes, student. Second question of worksheet 32. To know the opinion of student about the game football, a survey of 200 student. Survey of 200 student. 200 students was conducted. The data is recorded in the following tables: opinion, like or dislike, number of students 135 or 65, total is 200. Find the probability that the student chosen at a random. What is random? Random is an experiment in which we cannot predict result in advance. Now you have to find the probability of a student like the football. First of all, write the identity PE, probability of event E, favorable outcomes by total outcomes. Total outcomes. Now you have to find the probability of student like the football. Probability of student like football favorable outcome means those student who like the football. Student like the football, that is 135. Total outcomes mean total student, that is 200. आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 5 से कैंसिल करोगे 5 2 और 5 3, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और this one is 4 और 0, that is 27/40. Now second is probability do not like football, does not like football. Yes, number of student does not like football, that is 65. 65/200. यहाँ भी आप कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकते हो. 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर और 15, 5 3 जा 15, 4 और 0, that is 13/40. That is your answer. Your worksheet is complete.